Hello viewers, today we will cover the topic seed dormancy part 2. In the last part we will cover the definition of seed dormancy, type of seed dormancy and embryo causing and seed coat imposed seed dormancy. In this video we will cover the next type of dormancy and techniques to remove the dormancy. Third type of dormancy is dormancy due to absence of light. Means some seeds are require light to germinate. मीन्स कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनको जर्मिनेशन के लिए लाइट रिक्वायर होगी, उन सीड्स को बोलते हैं फोटोब्लास्टिक सीड्स. उनकी जो लाइट की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है. जैसे कुछ सीड्स हैं उनको जर्मिनेशन के लिए स्पेसिफिक लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं वो चाहिए, जैसे रेड लाइट है या फिर ब्लू है, इस टाइप से. और कुछ में क्या है, क्वालिटेटिवली नहीं होगा, मीन्स कि स्पेसिफिक लाइट से जो जर्मिनेशन है वो इफेक्ट नहीं होता, जबकि लाइट का जो ड्यूरेशन है वो उसको इफेक्ट करता है. तो फर्स्ट है डोरमेंसी ड्यू टू स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट और ड्यू टू लाइट क्वालिटी. जो सर्टेन सीड्स हैं लाइक लेक्टोना, लेथाइरम एंड निकोटियाना टोबैकम, दे रिक्वायर्ड स्पेसिफिक लाइट फॉर देयर germination. So to break down the dormancy in this type of seeds, the particular light is provided to those seed during germination. Second is light quantity, not quality, means light duration that affect the germination of seeds by affecting the specific photoperiod. means जो seeds है उनको specific photoperiod चाहिए light requirement के लिए. जैसे for example बिग्नोनिया है, बिग्नोनिया required the photoperiod of 12 or more hours for the seed germination. These light sensitive seed, means those need the light for their germination, are called the photoblastic seeds. Next is germination due to germination inhibitors. There are certain components which inhibit the germination are present within the seed itself. They may be present in the seed coat, endosperm, pulp or embryo or the surrounding integuments them. तो इस टाइप के जो इनहिबिटर्स हैं ये मे बी दीज कैन मे बी ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं, फिनोलिक्स हो सकते हैं, टैनिन्स, एल्केलॉइड्स, अनसैचुरेटेड लैक्टोन्स, अमोनिया साइनाइड एक्सेट्रा. ये क्या करते हैं, दीज रिलीज द सब्सटेंस और इंडोल्स और जिबरलिन्स जो कि इनहिबिट करेंगे जर्मिनेशंस को. इनके अलावा भी जो इनहिबिटर्स हैं जैसे एब्सिसिक एसिड है, ABA, अमोनिया, थैलेट्स हैं, कमेरिन्स हैं और पैरास्कॉर्बिक एसिड. तो ये जो इनहिबिटर्स हैं ये विद इन सीड प्रेजेंट होते हैं और जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं वो इनको रिलीज करते हैं, जो जिसकी वजह से जो इनहिबिटर्स हैं उस सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं एंड कॉजिंग डोरमेंसी ऑफ इन दो सीड. फॉर एग्जाम्पल इन टोमेटोज, इन ग्लूम्स ऑफ oats etc. Now due to absence of low temperature, some plants require very low temperature for their germination. If they do not get that low temperature, they fail to germinate, means उनमें germination नहीं होगा. तो it means वो dormancy किसकी वजह से हुई, absence of that particular low temperature. So that is called dormancy due to absence of low temperature. Now we will discuss the methods to overcome this seed dormancy. Till now we discussed the various types of dormancy, but now we will discuss the methods to break down those dormancy one by one. Those techniques are scarification, impaction, stratification, alternating the temperature, exposure of seed to light. Now we will discuss all these techniques one by one in detail. First is scarification. Scarification means scratching. Means this is the method employed in softening or weakening of the seed coat. Scarification is mostly used for removing the seed coat dormancy. In this method, the seed coat is weakened or scratched with the help of natural methods like microorganisms, fungi or bacteria etc. Otherwise by mechanical methods like breaking of seed coat done by one or more places, that is called mechanical scarification. That mechanical scarification done by various methods, that can may be treatment of the seed coat by strong mineral acids, that is called chemical scarification. In mechanical scarification we
nicking or scratching the seed with the help of sandpapers or with the help of some sharp objects. In chemical scarification, we use different chemicals to weaken the seed coat, especially sulfuric acids or other organic solvents like acetone or alcohol. But during the chemical scarification, we must care that the embryo inside the seed will not destroy during this process of scarification. We can also use boiling the seeds in water to weaken the seed coat of the seed to remove seed dormancy. This is the scarification method in which the one end of the seed is cut with the help of a nail cutter, and that help in the early sprouting of the seeds. Next is impaction. Impaction means in some seeds water and oxygen are unable to penetrate, means they are not able to penetrate within the seed, and that are necessary for the seed germination, because water is necessary for the imbibition, that is first step during the seed germination, and oxygen is responsible for the respiration. But sometimes the opening of seed coat is blocked by a cork like filling, and that can be removed by vigorously shaking of the seeds. The vigorously shaking of the seeds remove those plug. जो प्लग उसको बंद करेंगे, जो सीड कोट में पोर है, उसको विग्रोसली शेकिंग से हम रिमूव कर सकते हैं, एंड दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड इम्पैक्शन. दिस कैन बी यूज्ड इन द क्रोटोलेरिया और ट्राइगोनेला सीड्स. Next is stratification. Stratification means some seeds like peach, apple, etc. germinate only when they exposed to well aerated moisture condition under low temperature for week or months. Means जैसे ही seed dispersal होता है उसके बाद उनको कुछ टाइम के लिए लो टेम्परेचर पे और वेल एरेटेड एंड मॉइस्ट कंडीशन पे स्टोर करेंगे, तभी वो जर्मिनेट करने के लायक होंगे. तो ये जो ट्रीटमेंट है, स्टोरिंग द सीड्स in well moist and low temperature condition, is called stratification, and this makes the seed viable for germination. इसके पीछे जो फिनोमिनन है वो क्या है कि ड्यूरिंग दिस जर्मिनेशन एम्ब्रियो ऑफ दिस सीड रिक्वायर्स स्ट्रेटिफिकेशन आर इमेच्योर. मीन्स जब वो सीड डिस्पर्सल हुआ उस टाइम पे जो इसमें एम्ब्रियो है वो इमेच्योर होता है, एंड सम केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस storage that help in the maturation of the embryo and initiate the seed germination. Next is alternating the temperature. This stratification and this alternating temperature are different things. During stratification low temperature is required, but during this the temperature is altered. मीन्स जो चेंज है टेम्परेचर में, डेली टेम्परेचर है वो, उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, और ये जो डिफरेंस है अल्टरनेटिंग टेम्परेचर में वो 10 to 20 डिग्री सेल्सियस का होगा. एंड दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कोल्ड रिक्वायरमेंट. मीन्स स्ट्रेटिफिकेशन के जैसा नहीं है. इसमें क्या है, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर हाई होगा, कभी लो होगा. तो ये जो अल्टरनेटिंग टेम्परेचर है, दिस ऑल्सो हेल्प इन द रिमूविंग ऑफ द सीड जर्मिनेशन एंड हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स. एक्सपोजर ऑफ सीड्स टू लाइट मीन्स जो डॉर्मेंसी है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट या लाइट की वजह से जो वो थी उसको रिमूव कर सकते हैं हम. जो सीड्स है उनको बाय प्रोवाइडिंग एक्सपोजर टू लाइट. थ्री डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट फॉर जर्मिनेशन देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द सीड्स. फर्स्ट इज पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक. पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक मीन्स द सीड दोज रिक्वायर द लाइट फॉर देयर जर्मिनेशन आर कॉल्ड फोटोब्लास्टिक सीड. फॉर एग्जाम्पल अमेरैंथस, बेटुला, सिप्सेला, etc. Negatively photoblastic seeds means those seeds which does not require light for their germination, means they start their germination in dark conditions, that are called negative photoblastic seeds. And non-photoblastic seed that has no effect of light on their germination, that is called non-photoblastic सीड्स. मीन्स लाइट है या नहीं है वो जर्मिनेट करेंगे, उनके उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जबकि नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स क्या है, वो लाइट की एब्सेंस में जर्मिनेट करेंगे, और पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड लाइट की प्रेजेंस में ही जर्मिनेट करेंगे. तो दिस इज द एक्सपोजर ऑफ सीड्स टू लाइट टू रिमूव द डोरमेंसी. प्रेशर. Sometime Davis in 1928 reported that in some species seed germination
like in sweet clover or alfalfa plant can be greatly improved after being subjected to hydraulic pressure. Means 2000 atmosphere pressure at 18 degree Celsius about 5 to 20 मिनट अगर हम उनको इतना हाइड्रोलिक प्रेशर प्रोवाइड करते हैं 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फॉर 5 to 20 मिनट्स, देन दे बिकम मोर वाइबल टू जर्मिनेशन. ये किसकी वजह से होगा? क्योंकि जो प्रेशर है दैट इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर. तो उसकी वजह से जो परमेबिलिटी इंक्रीज होगी वाटर और ऑक्सीजन की वजह से, उसकी वजह से उसका जो जर्मिनेशन है वो इंक्रीज होगा और जो डोरमेंसी है वो रिमूव हो जाएगी. तो दैट इज रिमूवल ऑफ डोरमेंसी बाय प्रेशर. Growth regulator. Certain growth regulators are also used artificially for removal of the dormancy in the seeds, like kinetin, gibberellins have been used to induce germination in positively photoplastic seed. Means ऐसे seeds हैं जो लाइट की प्रेजेंस में जर्मिनेट करते हैं, तो उनके केस में अगर हम लाइट उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हम उनको क्या है आर्टिफिशियली काइनेटिन और जिबरलिन्स प्रोवाइड करते हैं, तो भी वो सीड्स क्या है जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं एंड रिमूवल ऑफ डोरमेंसी. फॉर एग्जाम्पल लेटूस सीड एंड tobacco. Counteracting the effect of growth inhibitor by soaking the seeds in KNO3 ethylene means या जिबरलिन, जो भी ग्रोथ इनिबिटर्स प्रेजेंट हैं सीड कोट के अंदर या एनी पार्ट ऑफ सीड में, उनको भी ग्रोथ इनिबिटर के इफेक्ट को भी हम रिमूव कर सकते हैं बाय सोकिंग दोज सीड्स इनटू KNO3 इथाइलिन, थाइयूरिया एंड जिबरलिन्स एक्सेट्रा. तो इन दिस वे वी कैन रिमूव द डोरमेंसी बाय डोरमेंसी ऑफ ड्यू टू ग्रोथ इनिबिटर्स by providing them growth regulators. एडवांटेज ऑफ सीड डोरमेंसी. कि सीड डोरमेंसी के एडवांटेजेस क्यों है? क्यों नेचर? क्योंकि नेचर में जो भी फिनोमेनन होता है उसकी कोई ना कोई अपने आप में एक एडवांटेज होती है. तो सीड डोरमेंसी की क्या एडवांटेज है? ये तो जर्मिनेशन को डिले कर रहा है, तो व्हाई इट इज बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स और फॉर द नेचर. फर्स्ट इज एडेप्टेशन टू इंश्योर दैट सीड जर्मिनेशन अकर ओनली अंडर फेवरेबल कंडीशन. कि नहीं तो क्या है, जो वीट की क्रॉप है वो कभी भी उगा सकते हैं अगर ये डोरमेंसी का फिनोमिना नहीं होगा. कोई भी क्रॉप किसी भी टाइम उगा सकते हैं. क्यों? तो इसकी वजह से क्या है कि ये पर्टिकुलर उसको इंश्योर करता है कि जो सीड जर्मिनेशन है पर्टिकुलर स्पीसीज का उन्हीं पर्टिकुलर फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में होगा. हर एक जो स्पीसीज है उनके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन वेरी करेगी, सभी के लिए एक जैसी नहीं होंगी. इनेबल्स एम्ब्रियो टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन. मीन्स अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो उस टाइम एम्ब्रियो जो है वो स्लिपरी मोड में रहेगा, उस टाइम वो जर्मिनेट नहीं करेगा. इनेबल स्टोरेज ऑफ सीरियल्स. जो भी हम अनाज खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, वीट, राइस एंड अदर पल्सेस वगैरह एज ए फूड, और नेक्स्ट सीजन में फिर हम उसको शोइंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो उसको ईट भी कर सकते हैं स्टोरेज फॉर्म में और शोइंग भी कर सकते हैं. तो ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? उस डोरमेंसी पीरियड की वजह से. इंट्रोड्यूसेस ए डिले इन जर्मिनेशन एंड देयर प्रोवाइड एडिशनल टाइम फॉर सीड डिस्पर्जल. मीन्स जैसे ही सीड डिस्पर्जल, जो सीड जर्मिनेशन है, अगर प्लांट से जो डिटैच हुआ सीड और तभी जर्मिनेट करना शुरू हो गया, तो क्या है वो जो प्लांट है उसके आसपास ही ग्रो करेगा, उसकी वजह से उसमें कंपटीशन बढ़ेगा. जबकि अगर सीड डोरमेंसी है तो जो प्लांट से जहाँ पे शेड हुआ नेचुरली जो है तो वो शेड हुआ, तो उसके जब उसका जर्मिनेशन और उसके शेडिंग टाइम में अगर डिफरेंस आ जाता है तो सीड डिस्पर्जल का के लिए टाइम मिल जाता है उसको, और उसकी वजह से उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, और वो जो प्लांट की कम्युनिटी है जहाँ पे उसका पेरेंट प्लांट्स है वहां से अदर जो कम्युनिटी है वहां पे भी ग्रो करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. मैक्सिमाइज द सर्वाइवल ऑफ सीडलिंग बाय प्रिवेंटिंग सीड जर्मिनेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. मीन्स जब जो सर्वाइवल ऑफ सीडलिंग्स है उसको इंक्रीज कर देता है. जैसे फ्रॉस्ट है, उस कंडीशन में अगर जर्मिनेट नहीं कर सकते तो उस टाइम पे वो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी उस टाइम पे सीड अपने आप को प्रिवेंट कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा उन अनफेवरेबल कंडीशन में, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो उस टाइम पे वो सर्वाइव करेगा जर्मिनेशन के थ्रू. तो दिस इज ऑल अबाउट सीड डोरमेंसी. थैंक्स.